یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے اس بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بسارت گل۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نریندر مودی 3 ملکوں جاپان، پاپوا نیو گیانا اور آسٹریلیا کے دورے پر روانہ۔ ہیروشیما میں G7 سربراہ کانفرنس میں کریں گے شرکت۔ جموں کشمیر میں CUET سینٹر قائم کرنے کے معاملے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی مرکزی وزیر تعلیم کی LG کو یقین دہانی۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی اودھمپور ضلع کے 2 روزہ دورے پر وارد۔ پٹنی ٹاپ میں سنگل یوز پلاسٹک کو ترک کرنے کے لیے بیداری مہم کا کیا آغاز۔ اور مالی سال 2022-23 کے دوران تیار کیے جانے والے دفاعی ساز و سامان کی مالیت پہلی مرتبہ 1 لاکھ کروڑ روپے سے متجاوز۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی 3 ملکوں جاپان، پاپوا نیو گیانا اور آسٹریلیا کے دورے کے پہلے پڑاؤ میں آج شام جاپان میں ہیروشیما پہنچ گئے، جہاں وہ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیڈا کی دعوت پر کل سے شروع ہونے والی G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 3 ملکوں کے دورے پر آج صبح روانہ ہوئے تھے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے خارجہ سیکریٹری ونے موہن کوندرا نے کہا کہ G7 سربراہ کانفرنس نے موجودہ صدارت کے لیے بہت سی اہم ترجیحات طے کی ہیں۔ G7 سربراہ کانفرنس کی ان وسیع ترجیحات میں نیوکلیائی ہتھیاروں کا خاتمہ، اقتصادی لچکداری اور سلامتی، علاقائی معاملات، آب و ہوا اور توانائی، خوراک و صحت اور ترقی شامل ہیں۔ کانفرنس میں ڈیجیٹائزیشن اور سائنس و ٹیکنالوجی جیسی دیگر ترجیحات بھی شامل ہیں، جنہیں اجلاس کے دوران اجاگر کیا جائے گا۔ دریا اثنا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ G7 ملکوں اور دیگر مدعو شراکت دار ملکوں کے ساتھ ان چیلنجوں پر تبادلہ خیال کے سلسلے میں پر امید ہیں جو دنیا کو درپیش ہیں اور جن سے اجتماعی طور پر نمٹے جانے کی ضرورت ہے۔ آج ہیروشیما روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس G7 سربراہ کانفرنس میں خاص طور پر ان کی موجودگی بامعنی ہے، کیونکہ اس سال G20 کی صدارت کے فرائض بھارت انجام دے رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہیروشیما G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے کچھ رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ پاپوا نیو گیانا کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے کسی وزیر اعظم کا اس ملک کا پہلا دورہ ہوگا۔ آسٹریلیا میں اپنی مصروفیات کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ وزیر اعظم البینز کی دعوت پر سڈنی جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ 2 طرفہ ملاقات کے تئیں پر امید ہیں، جو 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لینے کا ایک موقع بھی ہوگا۔ سری نگر میں 22 سے 24 مئی تک جاری رہنے والی تیسری G20 ٹورزم ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے لیے انتظامات اور تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے مرکزی ٹورزم سیکریٹری اروند سنگھ نے کہا کہ اس میٹنگ کے افتتاحی اجلاس سے G20 کے شیرپا امیتابھ کینٹ خطاب کریں گے۔ اس تیسری ورکنگ گروپ میٹنگ میں 5 اہم ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، جن میں گرین ٹورزم، ڈیجیٹلائزیشن، سکلز ٹورزم، MSMEs اور ڈیسٹینیشن مینجمنٹ شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ یعنی CUET کے لیے امتحانی مراکز سے جڑے معاملے پر آج مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے بات چیت کی اور ان سے جموں کشمیر میں CUET سینٹر قائم کرنے کی استدعا کی۔ LG کے دفتر کے ایک ٹویٹ میں جانکاری دی گئی ہے کہ وزیر تعلیم نے منوج سنہا کو ترجیحی بنیاد پر اس معاملے کو حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی و اقلیتی امور کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے آج اپنے 2 روزہ اودھمپور ضلع کے دورے کے دوران پٹنی ٹاپ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حد اختیار میں آنے والے علاقے میں سنگل یوز پلاسٹک کے بارے میں ایک بیداری مہم کا آغاز کیا۔ پٹنی ٹاپ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنے حد اختیار میں آنے والے علاقے میں جلد ہی سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی لگانے کا منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ پلاسٹک پولوشن پر روک لگائی جا سکے اور اسے اور پائیدار مستقبل کے لیے ماحولیاتی نظام کو تحفظ دیا جا سکے۔ یہ ابتدائی بیداری مہم لوگوں کو سنگل یوز پلاسٹک سے جڑے خطروں کے بارے میں باخبر کرنے اور عوامی رائے نیز متبادل طریقے کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے تھی۔ اسمرتی ایرانی نے پٹنی ٹاپ سے اس بیداری مہم کی شروعات کرتے ہوئے پٹنی ٹاپ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ماحول دوست اقدامات کی ستائش کرتے ہوئے متعلقین اور سیاحوں کو پٹنی ٹاپ کی قدرتی خوبصورتی اور ماحولیاتی توازن کو بچائے رکھنے کے لیے اپنی مدد اور تعاون دینے کی استدعا کی۔
उन्होंने प्लास्टिक, खासतौर से सिंगल यूज प्लास्टिक के इंसानों और माहौल पर पड़ने वाले मनफी असरात को उजागर किया और कहा कि बेहतर तरीका यह है कि इसके इस्तेमाल को कम किया जाए और रफ्ता रफ्ता इस पर पूरी तरह तर्क किया जाए। वजीर मौसूफा ने कहा कि तर्ज अमल में बदलाव मुश्किल जरूर लगेगा, ताहम ये नामुमकिन नहीं है। किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में अर्थ साइंस की वजारत में मरकजी वजीर का ओहदा संभाल लिया। प्रोफेसर SP सिंह बाग्याल ने सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में मरकजी वजारत में वजीर ममलिकत का ओहदा भी संभाल लिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर वकील KV विश्वनाथन को आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की हैसियत से हल्फ दिलाया गया। उन्हें भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ओहदे का हल्फ दिलाया। इन दो नए जजों के तकर्रुर के साथ सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की तादाद 34 हो गई है, जो मंजूर शुदा जजों की तादाद है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को इन दो नामों की सिफारिश की थी, जिसके बाद सरकार ने अपनी मंजूरी दी और फिर कल उनकी तकर्रुरी का ऐलान किया। राज्यसभा के BJP पार्लियामेंट मेंबर गुलाम अली खटाना ने आज नई दिल्ली में दिफा व सयाहत के मरकजी वजीर ममलिकत अजय भट्ट से मुलाकात की और उनके साथ जम्मू कश्मीर में सलामती मंजरनामे और सयाहती इक़दामात पर तबादुल ख्याल किया। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि श्रीनगर में होने वाली G20 मीटिंग से जम्मू कश्मीर में सयाहती सेक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा और इससे मजीद बैन अक़वामी सयाह माइल होंगे। ये खबरें आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से सुन रहे हैं। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कुलगाम ने G20 समिट के बैनर के तहत तमाम उम्र की लड़कियों के लिए एक रोड रेस का एहतमाम किया। ये दौड़ छताबल क्रॉसिंग से शुरू होकर स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में इख्तिताम पजीर हुई। इस रोड रेस में मुख्तलिफ सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की 350 से ज्यादा तलबात ने हिस्सा लिया। बाद में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाली लड़कियों में इनामात तकसीम किए गए। इग्नू के रीजनल शाख का आज सदकदल श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया। इब्तिदाई रस्म इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रमशू ने अंजाम दी। उन्होंने इग्नू के रीजनल सेंटर का दफ्तर राजबाग से सदकदल मुंतकिल करने के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि ये इसलिए जरूरी था क्योंकि राजबाग इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलियत दस्तियाब नहीं थी और ऐसे में वस्ती कश्मीर के साथ साथ शुमाली और जनूबी कश्मीर से आने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस मौके पर इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शहनवाज अहमद ने जानकारी दी कि इग्नो ने जुलाई 2030 एडमिशन साइकिल के लिए अपने मुख्तलिफ एकेडमिक प्रोग्रामों के लिए दाखिले का अमल का आगाज किया है। बारामूला जिले में जल जीवन मिशन की मौसर अमलावरी की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए जिला की डिप्टी कमिश्नर ने आज DC ऑफिस कम्प्लेक्स में मुतल्लिका अफसरों की एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर जानकारी दी गई कि इस मिशन के तहत जिले में कुल 1,45,000 घरानों को कवर किया जाना है, जिसके लिए 209 कामों पर पहले ही अमल दरामद हो रहा है और इस तरह से कामों पर 70% पेशरफ्त हासिल की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला इंतजामिया जल जीवन मिशन स्कीम पर रोजाना बुनियादों पर नजर गुजर रखी हुई है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही है कि मज़कूरा स्कीम के तहत सभी कामों में 100% पेशरफ्त हासिल की जाए। उधर कुलगाम जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुलगाम की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। उन्होंने मीटिंग में जिला की तमाम म्युनिसिपल कमेटियों में मज़कूरा स्कीम की अमलावरी का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने आज जिला के क्राड देहात से मैं भी किसान मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम का मकसद स्कूली बच्चों को खुराक की सलामती के तहफ़्फ़ुज़, कुदरती वसाइल की बरकरारी और आइंदा नस्लों के लिए माहौल को बचाए रखने के लिए ज़राअत का माहौल के साथ रोल के बारे में बाखबर करना है। इस मुहिम का ये भी मकसद है कि अमली तौर पर तलबा को ज़राअत के उन मुख्तलिफ पहलुओं से रूबरू कराया जाए जिनके बारे में वो बाखबर हैं। तलबा इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ खेतों में जाकर रिवायती और नई खेती बाड़ी की टेक्नोलॉजी से वाकफियत हासिल कर सकेंगे। इस मुहिम को ज़राअत महकमे ने स्कूली तालीम महकमे के इश्तराक से मुनक्किद किया।
वजारत दिफा ने कहा है कि माली साल 2022-30 के दौरान तैयार किए जाने वाले दिफाई साजो सामान की मालियत पहली मरतबा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। वजारत ने कहा कि ये मालियत फिलहाल 1,06,800 करोड़ रुपए है और इसमें बकाया प्राइवेट दिफाई सन्नतों की तरफ से हासिल होने वाले अदाद-ओ-शुमार के बाद मजीद इजाफा होगा। 2022-30 के दौरान तैयार किए जाने वाले दिफाई साजो सामान की मालियत पिछले माली साल के मुकाबले 12% से भी ज्यादा है। पिछले साल ये मालियत 95,000 करोड़ रुपए थी। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने कांग्रेस कानून साज पार्टी के रहनुमा सिद्धारमैया को वजीर आला और डी.के. शिव कुमार को नायब वजीर आला के तौर पर काबीना के अरकान के साथ हलफ लेने के लिए मुदऊ किया है। सिद्धारमैया को लिखे गए खत में कहा गया है कि हलफबर्दारी की तकरीब कांतिराव स्टेडियम में कल दोपहर 12:30 बजे मुनाकिद होगी। इसी दौरान कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग बेंगलुरु में कल शाम मुनाकिद हुई। डी.के. शिव कुमार ने मीटिंग में सिद्धारमैया को कांग्रेस कानून साज पार्टी के नए रहनुमा के तौर पर मुंतखब करने की करारदाद पेश की और मीटिंग में मौजूद सभी अरकान इत्तेफाक की राय से इसकी तौसीक कर दी। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से कहा कि वह ऐसे प्रोग्राम तैयार कर रहा है जिन पर अमल करके सभी तरह के खतरात के इम्कानी नुकसानात को कम किया जा सके, जिसमें जमीन के तूदे गिरने, खुराक, जलजले, शदीद गर्मी और बिजली गिरना भी शामिल है। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी.के. मिश्रा ने कहा कि भारत कुदरती आफात की वजह से दरपेश खतरात को कम करने के मामले को इंतहाई अहमियत देता है, क्योंकि यह अवाम से मुतल्लिक पॉलिसी का एक मरकजी मामला है। उन्होंने कहा कि भारत ने कुदरती आफत के खतरात को कम करने के लिए मुख्तस रकूम में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। पी.के. मिश्रा ने यह बात 2015 और 2030 के दरमियान कुदरती आफत के इम्कानी खतरात को कम करने से मुतल्लिक सिंचाई फ्रेमवर्क SFDRR के वस्त मुद्दती जायजे से मुतल्लिक आला सतह की एक मीटिंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में खतरात को कम करने से मुतल्लिक मरकज की इस मीटिंग में कही। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों जापान, पापुआ न्यू गियाना और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना। हिरोशिमा में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर में CUET सेंटर कायम करने के मामले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की मरकजी वजीर तालीम की LG को यकीन दहानी। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी उधमपुर जिले के 2 रोजा दौरे पर वारिद। पत्नी टॉप में सिंगल यूज प्लास्टिक को तर्क करने के लिए बेदारी मुहिम का किया आगाज और माली साल 2022-23 के दौरान तैयार किए जाने वाले दिफाई साजो सामान की मालियत पहली मरतबा 1 लाख करोड़ रुपए से मुतजाविज। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्ताम पजीर होता है।